Let's start with some discussion only. What was the original meaning of organic? Natural. Who was the first scientist to prove that organic compounds need not be completely natural? They can be made in laboratory also. Frederick Wohler. Correct. What was the compound made by Frederick Wohler in laboratory, which was first initially considered as organic? Very good. Urea came from the urine of humans and animals, which was believed to be as a completely organic compound. But Frederick Wohler made that compound in laboratory and he completely discarded this theory of organic chemistry. So, what is exactly organic chemistry? Now, when we say organic chemistry, what do you mean by it? The study of compounds containing carbon, which can be made physically as well, not only naturally. Naturally occurring as well as can be made in the laboratory. So, mostly organic chemistry is the study of carbon compounds. Can I say that? Okay. In this chapter, what kind of compounds are we going to study? And with carbon, something else? You remember the homologous series? Which other element was there with carbon? No, 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 no. I'm talking about element. You remember? कार्बन के साथ और कौन सा एलिमेंट था? नेक्स्ट टाइम मेरे क्लास में जब बैठोगे तो जो मैंने पहले पढ़ा है ना उसका रिवीजन करके आना मेरे को, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ऐसे मुंह उठा के मत आना कि देखते हैं क्या पढ़ाएंगे सर, ये नहीं चाहिए मुझे। ऋषि, कार्बन के साथ और कौन सा एलिमेंट था? वेरी गुड। सो दिस chapter is dedicated to the study of hydrocarbons, compounds containing carbon and hydrogen mostly. There will be some functional groups, but we are going to focus on compounds containing carbon and hydrogen mainly, which are also known as hydrocarbons. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, बट जो पहले एक नोशन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरली अकरिंग होते हैं, लैब में नहीं बन सकते, वो नोशन गलत है। और ये जो कार्बन कंपाउंड्स है या हाइड्रोकार्बन है, ये लैब में भी हम बना सकते हैं, but the name got stuck, that is organic chemistry, organic compounds. That is what we are going to study in this chapter. Why is there a need to study this particular topic separately? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग क्यों कर दिया गया? इनऑर्गेनिक के साथ ही पढ़ लेते। ज्यादा एलिमेंट्स एलिमेंट्स तो 118 होते हैं सिर्फ। एलिमेंट्स तो सिर्फ 118 होते हैं। उनमें से सिर्फ कार्बन की स्टडी या कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी को अलग ब्रांच क्यों दे दी? व्हाट वाज द नीड? एमरी, so you are telling me the reason why carbon forms numerous number of compounds, right? What I am asking is why there is a need to study carbon compounds separately in a branch called organic chemistry. Yeah, that's what she said. And that is catenation. So self linking और टेट्रावैलेंसी जैसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कार्बन एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि वो मल्टीपल वेज में दूसरे एलिमेंट्स के साथ लिंक करके वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। कितने कंपाउंड्स नोन है? 5 मिलियन।
अभी तक ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, एंड thousands of more carbon compounds are added every year to the existing list. अगर सिर्फ कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना सकता है तो we have to study this particular element and its compounds separately. That's why they have been assigned a separate branch in chemistry which is known as organic chemistry. नहीं तो क्या जरूरत थी? तो अब सिनेरियो ये है कि केमिस्ट्री दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है. एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज द स्टडी ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन, इन एज वेल एज कार्बन, मतलब कार्बन भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर जस्ट कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स are studied separately in organic chemistry because of the large number of carbon compounds known to us and which are discovered as we speak. ठीक है. क्या यूजेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? देयर इज हार्डली एनी वॉक ऑफ लाइफ वेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट यूज्ड. एवरीथिंग अराउंड यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स. सो यूजेस तो न्यूमरस है. यहाँ पे सोर्सेस दिए हैं और उसके यूजेस यहाँ पे दिए हैं, ये वाले एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पैराग्राफ में. तुम्हारा दिन शुरू होता है ना, यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दिन की शुरुआत ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से होती है तुम्हारी. जो तुम टूथपेस्ट यूज करते हो, जिससे ब्रश करते हो तुम टीथ, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. फिर जैसे जैसे आगे तुम चीजें यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो, चाहे वो सोप हो, शैम्पू हो, फूड आर्टिकल्स हो, कुछ भी हो, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लोथ्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो देयर इज हार्डली एनी category under which organic compounds are not there. And that's why we have to study them in a very systematic manner under this chapter. Otherwise, the study of chemistry will be incomplete. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था तुम्हारी लाइफ में क्लास 8th में. क्लास 8th में केमिस्ट्री में फाइनल चैप्टर था जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था इनफॉर्मली. मतलब कार्बन क्या क्या कर सकता है, कैसे बॉन्ड्स बनाता है, कैसे कंपाउंड होते हैं कार्बन के, वो सब वहां पे था. लेकिन यहाँ पे तुम फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो रहे हो और आगे चल के ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा केमिस्ट्री के अंडर. और आगे चल के अगर तुम स्पेशलाइजेशन या मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट करना चाहते हो, पीएचडी, तभी भी पॉसिबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर. इनफैक्ट इसके अंडर बहुत सारी ब्रांचेस आज बन गई है. सो ये अपने आप में एक मेजर सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव इट प्रॉपर अटेंशन. ठीक है. चलो यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स पे आ जाते हैं. Achal, can you explain what is tetravalency? Can you repeat that? It can form more than 4 तो नहीं बना सकता. Exactly 4 बना सकता है, 4 से कम भी बना सकता है. But that is not what tetravalency means. Tetravalency means tetra का मतलब होता है 4. Valency मतलब number of valence electrons present in the outermost shell of carbon is 4. ये 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके पास एक यूनिक एडवांटेज है कि वो कोवैलेंसी, मल्टीपल टाइप ऑफ कोवैलेंसी एग्जिबिट करता है. मतलब एक कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, एक ट्रिपल, एक सिंगल बना सकता है, एक डबल और 2 सिंगल भी बना सकता है. मतलब देयर कैन बी वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स व्हिच वन कार्बन एटम कैन फॉर्म. दैट इज टेट्रावैलेंसी. The presence of 4 electrons in its outermost shell. Tetra, 4, valency, number of electrons.
ठीक है, सो दैट इज इट्स यूनिक नेचर, और किसी के पास ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सिलिकॉन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या है ऋषि? सिलिकॉन के साथ क्या प्रॉब्लम है? सिलिकॉन भी तो टेट्रावेलेंट है, बिल्कुल कार्बन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, उसी ग्रुप में, ग्रुप नंबर 14। तो प्रॉब्लम क्या है? सिलिकॉन क्यों टेट्रावेलेंट होने के बावजूद यूनिक नेचर उसका नहीं मानते हम, या कार्बन जैसी यूनिकनेस क्यों नहीं है सिलिकॉन के पास? क्यों नहीं बना सकता, वही पूछ रहा हूं। क्योंकि उसके कंपाउंड स्टेबल नहीं है। कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल element which can exist in a compound. So carbon compounds are most stable, more stable than any other element. ठीक है, सो ये एक फायदा है टेट्रावैलेंसी का। दूसरा है कैटेनेशन। यश, कैटेनेशन का क्या मतलब? सेल्फ लिंकिंग टुगेदर। गलत चॉइस ऑफ वर्ड है ये। सेल्फ लिंकिंग टुगेदर कुछ होता ही नहीं। तुम लोग के पता है मार्क्स क्यों कटते हैं? क्योंकि तुम लोग ना, तुम्हारे चॉइस ऑफ वर्ड बिल्कुल ही पथेटिक है। चॉइस ऑफ वर्ड कहां से आता है? आदमी कुछ भी बात करता है, लिखता है, तो कहां से वर्ड चूज करता है? मन से करता है। मन में वर्ड कहां फिट होते हैं? कौन फिट करता है? टेक्स्ट बुक करती है। और तुम्हारी ये जो बोर्ड का प्रॉब्लम है ना आईसीएससी का, वो क्यों काटती है मार्क्स, क्यों तुम्हारे पीछे लगती है वो? खास करके साइंस, ये मेरे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि उनको चाहिए परफेक्शन। और तुम में से बहुत कम लोग हैं जो परफेक्शन देते हैं। आधे लोग तुक्के मारते हैं, अपने मन से आंसर लिखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुम्हें पता है चीजें, लेकिन उनको जिस तरीके से चाहिए तुम नहीं आउटपुट डिलीवर कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माइंड से जो कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं ना, वो आधे अधूरे कॉन्सेप्ट है। तुम्हें टेक्सचुअल नॉलेज नहीं है। टेक्सचुअल नॉलेज की जरूरत है, तुम्हारा बोर्ड्स मांगती है टेक्सचुअल नॉलेज, जिसके ऊपर से तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। और खास करके टर्म 2 की बात कर रहा हूं। टर्म 2 क्यों? क्योंकि यहां पे टिक नहीं करना, यहां पे लिखना है, और तुम्हारे हाथ में है। टिक में तो और मामला डेंजरस हो गया था, क्योंकि एक टिक गलत हो गया तो सीधा 0 हो जाता है मामला। यहां तो तुम्हारे हाथ में है पावर कि तुम थोड़ा बेटर लिखो। तो सेल्फ लिंकिंग जब मैं पूछता हूं सेल्फ लिंकिंग क्या होता है या कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट, कैन सेल्फ लिंक विथ itself, can make numerous chains in one molecule of its compound by self-linking with its own atom. थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज करोगे तो आंसर अच्छा दिखेगा। तो बेस्ट है दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, सीधा टेक्स्ट बुक को रेफर करो। टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा है वैसे आंसर दो, वैसे लिखो, मार्क्स पक्के हैं तुम्हारे। ठीक है। The property of self-linking of atoms of an element through covalent bonds in order to form straight chains, branched chains and cyclic chains of different sizes is known as catenation. तो अगर तुमसे पूछा गया डेफिनेशन तो तुम्हें वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट एनी मार्क्स। ठीक है, ये याद रखना, ये चीज हम लोग इसके ऊपर वापस जाएंगे। अब कैटेनेशन कोई बहुत यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। सेल्फ लिंकिंग तो बहुत सारे एलिमेंट्स करते हैं, कार्बन भी तो करता है, हाइड्रोजन भी करता है सेल्फ लिंकिंग, H2, O2, N2, सब लोग करते हैं सेल्फ लिंकिंग। लेकिन कार्बन ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम एक्सटेंट तक एग्जिबिट करता है। मतलब कार्बन खुद के साथ बहुत ही लंबी चेन्स सेल्फ लिंकिंग करके बना सकता है। It is known that in one single molecule 70 carbon atoms are found. How they are found? Self-linked with each other through catenation. 70 कार्बन एटम्स एक चेन में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबल है ज्यादा। सो कार्बन सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी या कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को मैक्सिमम एक्सटेंट तक एग्जिबिट करता है, इसलिए ये उसकी यूनिकनेस है कार्बन की, दूसरों की नहीं है। अब ये दो चीज है, जस्ट इमेजिन
टेट्रावैलेंसी एंड सेल्फ लिंकिंग, इसका कॉम्बिनेशन इतना डेडली है कि कार्बन के मिलियंस ऑफ वैरायटी बन सकते हैं और बने हैं कंपाउंड्स के. सो देयर कैन बी न्यूमरस नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ड्यू टू दीज टू प्रॉपर्टीज. अच्छा, दूसरा सेल्फ लिंकिंग तो वो करता है लेकिन अलग अलग तरीकों से करता है. ये याद है? फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन. क्यों? सारे कार्बन एटम्स एक ही लाइन में. सेकेंड वाला ब्रांच्ड, ब्रांचेस निकल सकती है. इसके बारे में हमें आज डिटेल में पढ़ना, आइसोमेरिज्म. ठीक है. थर्ड इज साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, जहां पे मिनिमम 3 कार्बन एटम्स क्लोज चेन्स बनाते हैं. 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं. सो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड्स. सो अलग अलग तरीके से कैटेनेशन एग्जिबिट करता है कार्बन. स्ट्रेट, ब्रांच, साइक्लिक, खुद के साथ अलग अलग शेप्स में लिंक करता है. अगेन, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ एंड विथ अदर एलिमेंट्स कैन बी पॉसिबल. टेट्रावैलेंसी का फायदा, और इसी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है. सो हमें मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो इस टेबल में तुम्हें दिए हुए हैं. और हमने लास्ट लेक्चर में इनमें से 3 टाइप ऑलरेडी डिटेल में हमने समझी थी. और मैंने तुम्हें कुछ टास्क भी दिया था जो मैं आज तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, बट मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि मैंने तुम्हें एक टेबल बनाने बोला था. मैं तुम्हें सैंपल भी दिखा देता हूँ क्या है. यू आर आस्किंग फॉर द वीडियो, आई विल अपलोड इट टुडे. ठीक है. आई डिड नॉट अपलोड बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव अ कन्वर्सेशन बिफोर आई जस्ट गिव इट द वीडियो. अदरवाइज पीपल वुड टेक के नहीं ठीक है वीडियो ही देख लेना, फिर क्या करना है. इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि जो जो चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी एक बार सुन लेना, नहीं याद है तो, और वो कर लेना. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था टू मेक अ टेबल फॉर 3 मेजर हाइड्रोकार्बन्स विच आर आल्केन, आल्कीन एंड आल्काइन. क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ अभी, बट उसका टेबल तुम्हें रेडी करना है अप टू हेक्स. अप टू हेक्स ये भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर. तो हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं मेजर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में? परफेक्ट. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है. वो सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फैमिली का नाम क्या है? अल्केन. इनको अल्केन बोला जाता है. कुछ रीजन है उसके पीछे, वो हम धीरे धीरे समझेंगे. IUPAC नेमिंग और नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा आइडिया तो है हमको फिर भी. सो अल्केन्स में क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी क्या है अल्केन की? इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. whatever carbon atoms are there in alkanes all will have single bond among themselves. and उनका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. राइट. पहले ऊपर ये लिख लिया, फिर नीचे दिख रहा है तुम्हें ये फर्स्ट हाइड्रोकार्बन इन द होमोलोगस सीरीज और फैमिली ऑफ अल्केन. क्या नाम है इसका? मीथेन. कैसे स्ट्रक्चर बना? हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें CnH2n+2, इसमें n की जगह 1 डाल दिया. जैसे मैं n की जगह 1 डालता हूं, H के नीचे जो 2n+2 है वो कितना बन जाता है? उर्मी मैम के साथ है, पहले रहेगा वहां पे, रुको. ठीक है. CH4, n की जगह 1 डाला, H की जगह 4 आ गया, तो मतलब फर्स्ट कंपाउंड रेडी हो गया. फर्स्ट कंपाउंड ऐसा कुछ दिखता है. ये कौन सा स्ट्रक्चर है ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. हम अब डॉट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने वाले, अब हम सीधा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. इसमें जो सिंगल लाइन है उसका मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड मतलब 1 pair of electron is shared among both the
elements, atoms of both the elements. ये क्या है CH4? This is molecular formula. और ये क्या है? This is the name according to IUPAC nomenclature. Does this name has any meaning or ऐसे ही randomly रखा है इसको? It has a meaning, right? So the meaning behind this name is that I gave a table also. It's there in your book. I'll just show you here. Do you see this table? It's there in your book. एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है? So basically we have to be aware about the root word, which signifies the number of carbon atoms. एक कार्बन के लिए क्या है रूट वर्ड? 2. 3 कार्बन के लिए then ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक. कोई बहुत सब बच्चे बहुत पूछते हैं कि 10 से ज्यादा होगा तो क्या होगा. उसके लिए भी है नोमेनक्लेचर में, उसके भी सारे प्रोविजंस है. तुम्हें चाहिए तुम केमिस्ट्री में पीएचडी कर सकते हो और आके मुझे फिर बाद में बता देना, पढ़ा देना, मैं पढ़ लूंगा. लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे स्कोप में नहीं है. तुम्हें सिर्फ हेक्स तक याद रखना है. हेक्स मतलब जिसमें एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे? 6. तो तुम्हें एटलीस्ट एक पैटर्न समझ में आ जाएगी. वो पैटर्न समझना ज्यादा जरूरी है अभी, ठीक है? रादर देन थिंकिंग अबाउट 11, 12, 13, 20 कार्बन व्हाटएवर, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, दैट इज अनदर टॉपिक. राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज मेनी रूट वर्ड्स. तो मैंने जो अभी तुम्हें एलिमेंट बताया उसमें कितने कार्बन एटम थे? हाउ मेनी कार्बन एटम्स वर देयर in the elements which I just showed you, in the compound which I just showed you? 1. मतलब रूट वर्ड इसका क्या होना चाहिए? मेथ. बट ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? आल्केन. फैमिली का नाम क्या है? आल्केन में लास्ट 3 लेटर्स देखो, लास्ट 4 लेटर्स ANE. एस को हटा देंगे बिकॉज दैट्स अ प्लूरल, सो लास्ट 3 लेटर हो जाएंगे ANE. दैट एन is the suffix. So we need a root word and we need a suffix. In many cases we need a prefix also. And in many other cases we need numbers also. But that will go slowly. Basically नाम कैसे रखते हैं? Root word लेते हैं according to number of carbon atoms. Suffix choose करते हैं according to the family or what kind of bond it has. Single bond, alkane, ane suffix. 1 carbon, meth, root word. Methane, methane. This is how the name is given. So we can easily figure out what is this. This is a molecular structure of the next member of the alkane family. कितने कार्बन है? 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ. कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? मतलब फैमिली है alkane, सफिक्स होगा एन, एथ, एन, इथेन. This is ethane. Okay, what is this? This is the molecular structure. What is this? Condensed का मतलब क्या होता है? Condensed का मतलब क्या होता है? Condensed means short form of the complete molecular structure, which gives us an idea about how a molecule will look like. ये स्ट्रक्चर देख के मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. सो मतलब ये अल्केन से बिलोंग करता है. And then if I find out number of hydrogen atoms and everything, I get to know that this is ethane. क्योंकि ये CnH2n+2 फॉर्मूला से रिजेंबल करता है, राइट? क्योंकि 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 हाइड्रोजन है इसमें. सो दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर which is the short form of molecular structure. कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के बाद ये क्या है? राइट, C2H6. इसको देख के कुछ समझ में नहीं आता कि ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या है, नहीं समझ में आता. आइसोमर है, तुम इसमें मिस्टेक कर सकते हो. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम सिर्फ केमिकल इक्वेशंस में यूज करेंगे.
लेकिन अगर हमें कंपाउंड की स्टडी करनी है तो व्हाट विल बी यूजफुल, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड देन इन द लास्ट IUPAC नेम इथेन। ये तुम्हें आल्केन के सारे मेंबर्स के लिए रेडी करना। पहला मेंबर क्या था, मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, पूरा टेबल बनाना है जिसमें ये सारी चीजें होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, IUPAC नेम एंड लास्ट मैंने एक चीज बोली थी, वेरी गुड, वो तुम्हें कहां से मिलेगा, एग्जैक्टली तो तुम्हें सारे कॉमन नेम की लिस्ट बनानी है। तो ये पूरा टेबल रेडी करना है, किसके लिए रेडी करना है, आल्केन, आल्कीन, आल्काइन, तीनों के लिए ये पूरा प्रॉपर टेबल रेडी करो, हेक्सेन तक, हेक्स तक बेसिकली, ठीक है। मैंने आल्कीन के बारे में अभी बात नहीं की। आल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n, फर्स्ट मेंबर मीथीन, मीथीन नहीं, मीथीन क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता 1 कार्बन यार, सॉरी, हाँ क्या हुआ, 1 कार्बन क्यों नहीं हो सकता, it needs at least 2 carbon atoms to form a carbon carbon double bond, so it has to have exactly 1 carbon carbon double bond। 2 से ज्यादा कार्बन चलेंगे लेकिन डबल बॉन्ड कितना चाहिए, एग्जैक्टली 1। 2 डबल बॉन्ड भी नहीं चलेंगे, 1 कार्बन भी नहीं चलेगा। सो मिनिमम कितने कार्बन के एटम्स होने चाहिए, और कार्बन कार्बन, तो पहला मेंबर क्या होगा इसका, वेरी गुड, अल्काइन, एग्जैक्टली 1 कार्बन कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, फर्स्ट मेंबर, वेरी गुड। यहां भी ये दोनों को कहां तक फिल करना है तुम्हें, तो ये हो गए तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स। मैंने और एक टाइप हाइड्रोकार्बन बताया था तुम्हें, यहाँ पे जैसे तुम्हें क्लासिफिकेशन दिया है ना, सो वी जस्ट स्टडीड द एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसमें हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स समझा अल्केन्स को, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस को समझा, उनके ट्रेंड को, उनके जनरल फॉर्मूला को, उनके स्ट्रक्चर को, टाइप ऑफ बॉन्ड, सब कुछ। और एक मैंने कवर किया था साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो साइक्लिक में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए अपने, साइक्लिक में कितने टाइप होते हैं, जनरली 3 होते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। 3 होते हैं, साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइंस। साइक्लो अल्केन्स में मिनिमम 3 कार्बन और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। साइक्लो अल्कीन्स में भी मिनिमम 3 कार्बन लेकिन एक कार्बन कार्बन डबल, और साइक्लो अल्काइंस में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। बट तुम बोलोगे कि 4 कार्बन होंगे तो भी चलेगा, 2 नहीं हो सकते, मिनिमम 3 है, 3 4 5 6 जितने भी कार्बन बढ़ा लो साइक्लिक कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें और एक एग्जांपल दिया था तुम्हें, ये व्हाट इज दिस, दिस इज chemical compounds और carbon compounds और organic compounds containing a benzene ring, जिसमें alternate सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, हेक्सागोनल शेप होता है रिंग का। जनरली ऐसे केमिकल कंपाउंड साइक्लिक ही होते हैं, बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है उनकी स्वीट स्मेल, एरोमेटिक स्मेल, जैसे नेप्थिलीन है, फिनॉल है, टोल्यूइन है, इनकी स्मेल अलग होती है। एंड व्हाट वाज दिस, एनीवन रिमेंबर,
लंगड़ा त्यागी क्यों नाम दिया इसको? एक टांग कटी हुई उसकी। मैंने एक चीज बताई थी तुमको लास्ट टाइम, दैट you know those alkanes, saturated hydrocarbons, they undergo a specific kind of chemical reaction. Do you remember that? Very good. Substitution reaction. They undergo substitution reaction. But unsaturated, they undergo addition reaction. इसको थोड़ा ध्यान में रखना। और फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अल्काइल्स का, इसको समझने की कोशिश करो। सो क्या होता है पता है, तुम्हारे पास एक अल्केन है मीथेन, और उसमें से एक हाइड्रोजन हट गया। ये एक हाइड्रोजन जब हट जाता है, जब काली स्पेस क्रिएट होती है, तब मिथाइल क्रिएट होता है। बट ये क्यों हटा है पता है? टू गेट सब्सटीट्यूटेड विद सम अदर एलिमेंट और कंपाउंड। सो ये सब्सटीट्यूशन सिर्फ पॉसिबल किस में है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में तो एडिशन होगा, यहां पे ये अनसैचुरेटेड मतलब अल्केन में ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो सब्स्टिट्यूशन होने से पहले ये हाइड्रोजन जब लूज हो जाता है, एक हाइड्रोजन की स्पेस जब वो खाली कर देता है, तो उसको हम लोग अल्काइल बोलते हैं। और यहां पे फंक्शनल ग्रुप आएगा। फंक्शनल ग्रुप मतलब जो हमें आगे पढ़ना है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन के और नए फॉर्म्स, जिसमें जैसे एक एग्जांपल देता हूं, तुमने सुना होगा ये, अगर यहां पे आ गया OH, तो इसका ये कंपाउंड क्या बन जाएगा पता है? CH3OH। इसका नाम क्या है पता है? मिथेनॉल। क्यों मिथेनॉल बोलते हैं पता है? बिकॉज ये जो OH है ना, इट बिलोंग्स टू अ फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड अल्कोहल। अल्कोहल में लास्ट दो लेटर्स कौन से हैं? OL। तो मीथेन है ना, ये तो मीथेन ही तो है। मीथेन के एंड में मैंने क्या लगा दिया? OL सफिक्स, मीथान ओल, मिथेनॉल बन गया वो। ये मिथेनॉल क्या है पता है? इट इज एन अल्कोहल, बट it is not that alcohol which people can consume. It is that alcohol which is poisonous. तुमने सुना होगा या पेपर में पढ़ा होगा, कुछ लोग स्प्यूरियस अल्कोहल कंज्यूम करके मर जाते हैं या अंधे हो जाते हैं। Some alcohol is not prepared in factories legitimately. They are prepared in some illegal manner, and that alcohol is methanol, spurious alcohol, methanol, which is poisonous. If you consume, you'll die, or you might go blind. It damages your brain. So that is this methanol. What if you add this functional group OH, which belongs to the category of alcohol, to ethyl or ethane? इथाइल क्या है? इथेन का एक हाइड्रोजन हटा के इथाइल बनता है ना। तो इसको अगर हम OH डाल दें यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा पता है? इथेनॉल। एंड इथेनॉल इज दैट अल्कोहल विच इज कंज्यूमेबल। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस या ड्रिंक्स होते हैं, उसमें ये पाया जाता है, इथेनॉल। एंड इट हैज दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर केमिकल effect on your nervous system, that it releases the tension of nervous system. So people consume it. They might also get addicted to it because it has those kind of chemical effects on the body. So that is this alcohol, ethanol, which is consumable. इसको naturally brew भी कर सकते हैं। ब्रू पता होगा तुम्हें, अल्कोहल को ब्रू किया जाता है। नहीं पता? बिल्कुल ओके, बहुत ही शरीफ हो, लेकिन अच्छा नहीं है, नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरी है। तुमको लग रहा होगा कि यार क्या बेकार आदमी यार, दारू वारू के बारे में पढ़ा रहे हैं, दारू कैसे बनता है,
30 ml 60 ml नहीं, ऐसी बात नहीं. You should have knowledge. You should have knowledge about this because this is part of your curriculum. Carbon compound है, बहुत important है. So brewing क्या होता है? Brewing is basically creating ethanol in a natural manner. So जैसे yeast पता होगा तुम्हें, yeast are some microbes which are used for fermentation. So brewing is a type of fermentation. Fermentation किसका होता है? Generally जैसे barley is a grain. बार्ली, व्हीट, राइस, ये सब ग्रेन्स जो होते हैं ना, उनको जब फर्मेंट किया जाता है यीस्ट के साथ या ऐसे माइक्रोब्स के कंपाउंड्स के साथ, तब उनमें से इथेनॉल क्रिएट होता है और वो इथेनॉल से बनता है बेवरेज, अल्कोहलिक बेवरेज जो लोग कंज्यूम करते हैं. समझ में आया अभी? सो दिस इज मेड इन सच अ मैनर नेचुरली. ओके, ठीक है. तो यहां तक हमने पढ़ा था. And these are the functional groups which we are going to study, जिसमें haloalkanes, alcohols, aldehydes, carboxylic acids, ketones and ethers है, जिसमें से हमें I think last time बताया भी था what is alcohol or haloalkanes included in the syllabus or only up to part D? Only up to part D, so we don't have functional groups. सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज सिंपल लिखा है सर, तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा. सिंपल का क्या कोई डेफिनेशन नहीं होता. वी नीड अ प्रॉपर टॉपिक्स. ठीक है. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज आइसोमर्स. Before I give you the definition, I would like you to focus here. Can you tell me which is the compound on the left? नाम लिखा है नीचे. ब्यूटेन. 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन. ब्यूटेन. And the compound on right, don't look at the structure, count the carbon atoms. 4. Count hydrogens. So is it C4H10? Are both of them C4H10? Yes. They both have same molecular formula. मतलब केमिकली दोनों सेम होने चाहिए. लेकिन नाउ, अच्छा और एक चीज, कैन यू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स? आर बोथ ऑफ देम हैविंग सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड? ग्रेट. If both of them are having carbon-carbon single bonds and the same number of carbons and the same number of hydrogens, that means they are chemically absolutely alike. Same है ना chemically, दोनों same है chemically. ये वाला लेफ्ट वाला C4H10 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट वाला C4H10 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. कोई फर्क नहीं है दोनों में. केमिकली दे आर एब्सोल्युटली सेम. लेकिन अगर तुम इनका स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो स्ट्रक्चर में फर्क है. लेफ्ट वाले में, ब्यूटेन में, चारों कार्बन के एटम्स एक ही लाइन में है, स्ट्रेट चेन में. और राइट वाले में 3 कार्बन एक लाइन में है और एक ब्रांच निकला हुआ है कार्बन का. दिख रहा है तुम्हें? इफ यू नोटिस ओवर हियर, ये चारों कार्बन एक साथ है, यहां पे 3 कार्बन एक लाइन में है और चौथा वाला ब्रांच निकली हुई है उसकी. सो देयर इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर. सो यहां से अपना टॉपिक ये शुरू होता है, आइसोमेर्स. एंड दिस फिनोमेना इज आइसोमेरिज्म. तो व्हाट इज दिस आइसोमेर्स और आइसोमेरिज्म? Isomers are the chemical compounds having same molecular formula but different structure. Molecular formula दोनों का सेम है, C4H10, but structure बिल्कुल अलग. That is isomerism. And due to isomerism or
the compounds which show the properties of isomerism are chemically the same but physically they are different from each other. ये दोनों ब्यूटेन है, लेकिन एक 0 डिग्री पे लिक्विफाई हो जाता है और दूसरा कितने पे होता है लिक्विफाई. तो इज देयर difference in physical attributes? Absolutely. Why is it different? Because of the structure. ठीक है. So there are different types of isomerism. इसमें भी प्रॉब्लम है कि आइसोमेरिज्म सिर्फ एक टाइप का नहीं होता कि ऐसे चेन बन गई तो आइसोमर है, बस ऐसे ही होगा. There are different types of isomerisms existing within carbon compounds, mostly hydrocarbons. So we have to understand isomerism. और हमें आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको प्रॉपरली नेम करना आना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ आइसोमर्स. देखो ये टाइप्स दिए. आइसोमेरिज्म मोस्टली दो टाइप की पाई जाती है. एक स्ट्रक्चरल है और दूसरी है स्टीरियो और स्पेस और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल में you will see that the positions of carbon elements in a compound will vary structurally. That means there can be a variation in chain. जैसे हमने पहले देखा था ब्यूटेन में 4 कार्बन एक ही लाइन में स्ट्रेट चेन बना रहा है, लेकिन आइसोब्यूटेन में एक ब्रांच निकल रही. तो चेन में वेरिएशन हुआ. कैसी चेन है कार्बन कार्बन लिंकिंग में, कैसा डिफरेंशिएशन है, उसके ऊपर से आइसोमेरिज्म हुआ है. सो दैट इज स्ट्रक्चरल. पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, या फिर जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड की भी पोजीशन चेंज हो सकती है व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. पोजीशन आइसोमेरिज्म. फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में नहीं, बट चेन और पोजीशन ये हमको समझना पड़ेगा. And there is another type which is geometrical or space or stereo isomerism. That is basically for carbon compounds having different 3D structures. 3D मतलब 3 dimensional. 3 dimensional structure ही अगर चेंज कर दिया मैंने किसी कार्बन कंपाउंड का, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएगी. तो ऐसे बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो केमिकली तो सेम है, लेकिन उनका जो फिजिकल स्टेट या फिजिकल एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज है बिल्कुल अलग एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर, डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर. ये भी हमें नहीं पढ़ना है. तो हमें दो ही टाइप के आइसोमेरिज्म पे ध्यान देना है, चेन, पोजिशन, एंड दैट कम्स अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सो वी विल सी, स्लोली सीखेंगे. इतना टफ नहीं है ये. लगता है सुनने में बहुत ही कुछ भयंकर आने वाला है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. तुम देखोगे तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा यहाँ तो ये हो रहा है, और दिस इज हाउ दिस इज एन आइसोमर. ठीक है. बट या देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डीप स्टडी वंस यू हैव लर्नड इट फर्स्ट टाइम. हाँ जी, ठंड लग रही है. आप और छोटी बनियान पहन के आ जाते तो अच्छा होता. देखो क्या है कि यहाँ पे कोई खिड़की दरवाजे नहीं है. इट्स अ क्लोज स्पेस. जनरली क्लासरूम ऐसे होते हैं. हाँ, स्कूल्स में होती है खिड़की, लेकिन स्कूल्स में बच्चे भी बहुत सारे होते हैं और बास वास आती है गंदा. मुझे उस टाइप के माहौल में पसंद नहीं है, तो मैं एसी चलाना चाहता हूँ. तो आपके लिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, कुछ देर के लिए. बट सून वी विल रिक्वायर, विल स्टार्ट अगेन. ओके. अब थोड़ा हाथ वाथ घिस लो. ओके. यहां पे दो मेन कॉजेस बताइए आइसोमेरिज्म के. फर्स्ट कॉज इज डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम्स. मतलब एटम्स जब एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो अलग अलग तरीके से करते हैं. इफ देयर इज डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकिंग, you will have different physical structure, although chemically it will be the same compound. यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है थोड़ा एडवांस्ड है, बट थोड़ा सोचने से तुम्हें समझ में आ जाएगा.
if you see the first chemical, can you see the structure? C2H5, बीच में O है, and then single bond है, और फिर again C2H5. Can you tell me total कितने कार्बन्स है? टोटल 4, और हाइड्रोजन कितने? मतलब there are 4 carbons and 10 hydrogens distributed in an equal manner around oxygen being in center. Can you see that? It's a very easy thing to notice. What happens in the second one? There is oxygen still in the middle, but the carbons have redistributed themselves in a different manner. ऑक्सीजन से पहले 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के बाद 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन है. कैन यू सी दैट? So do you think that there is a difference in mode of linking or difference in linking between the atoms? Yes. And if you see the last one, it will become much more clearer to you. मिथाइल आइसोप्रोपाइल एथर. तुम बोलोगे नाम कैसे आया है यार, कहाँ से देते हैं लोग नाम? सबका फॉर्मूला है, सबका एक तरीका है. तुम अगर वो सीख जाओगे, नाम देना बहुत इजी हो जाएगा. विल स्टडी दैट ऑल्सो इन नोमेनक्लेचर, सो डोंट वरी अबाउट इट. इसमें देखो ऑक्सीजन के आगे पीछे कैसा स्ट्रक्चर है. CH3 एज इट इज लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में CH है, और उसके साथ ब्रैकेट में CH3 ट्वाइस है. मतलब ये कुछ ब्रांच निकली हुई है राइट साइड में. ऐसा समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर पता नहीं है, लेकिन इट इज वेरी गुड. तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे वो डिफरेंट है एक दूसरे से. But if you count the number of carbon, hydrogen and oxygen atoms in all 3 of them, it will be same. 1 oxygen, 4 carbons and 10 hydrogens in all of them, but arranged in a different manner. So this is the first reason behind the exhibition of isomerism, that is difference in mode of linking of atoms. Then the second one is difference in arrangement of atoms or groups in space. Just see both the compounds. You will find, तुम्हें पता है बचपन में गेम खेलते थे फाइंड द डिफरेंस. 2 पिक्चर देते थे, एक में ऐसा हैट होता था, एक में हैट नहीं होता, एक में बल्ब जल रहा है, एक में बल्ब. पता है? तुम्हें वही करना है. बताओ व्हाट इज द डिफरेंस? पिक्चर नहीं है, वो कंपाउंड है. ठीक है. So hydrogen is on the top and chlorine at the bottom of the compound in the first molecule. In the second molecule, they are diagonally spaced. So there is a difference in placements of elements in a particular compound, which can also result in isomerism, that is difference in arrangement of atoms. राइट तो ये रीजंस है आइसोमेरिज्म के पीछे, क्योंकि एटम्स अपने आप को किसी भी तरीके से अरेंज करेंगे ना. इन दी एंड रिजल्ट क्या है? मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल बन रहा है ना, दोनों में बन रहा है, स्टेबल है, बट इनकी पोजीशंस में और लिंकिंग में अगर फर्क आया तो आइसोमर्स क्रिएट होंगे. ठीक है. सो दिस इज द बेसिस ऑफ आइसोमेरिज्म. ओके. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हमें 2 पढ़ने हैं इसमें. कौन से 2? चेन एंड पोजीशन. चेन एंड पोजीशन, बस. बाकी सबके बारे में दिया भी है, लेकिन फिक्र मत करना, हम सिर्फ ये 2 पे फोकस करेंगे. चेन, when 2 or more compounds have similar molecular formula but are different in the arrangement of carbon atoms in straight or branched chains, the compounds are referred to as chain isomers and the phenomena is termed as chain isomerism. Molecular formula दोनों में similar होंगे, बट कार्बन एटम या तो स्ट्रेट लाइन में होंगे या तो ब्रांच निकली होगी उनकी. मतलब चेन में फर्क आ गया. सेल्फ लिंकिंग का जो मेथड है वो चेंज हो गया. स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, कुछ भी हो सकता है. तो इसका एग्जाम्पल देख लो. पहला एग्जाम्पल है पेंटेन. पेंटेन पता है ना तुम्हें? पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5 एंड कार्बन कार्बन
सिंगल बॉन्ड, ऑल ऑफ देम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? C5H12, C5H12, CnH2n+2 के से तो C5H12 ही होता है। तो दिस इज योर पेंटेन। ये कौन सा फॉर्मूला है? काइंड ऑफ कंडेंस्ड फॉर्मूला है, इतना क्लियर नहीं है, फिर भी कंडेंस्ड फॉर्मूला दिख रहा है मुझे ये। अच्छा, इसको जरा हम लोग अपने तरीके से बना लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। स्केलेटल स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था, पता है तुम्हें? स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ कार्बन बनाना है बॉन्ड्स के साथ, हाइड्रोजन नहीं बनाना है। स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा होगा? करेक्ट? सही है? दिस इज हाउ योर कंपाउंड विल लुक लाइक, विच इज पेंटेन। अब इसका पहला आइसोमर, आइसोपेंटेन। इसमें क्या हुआ है पता है? 5 कार्बन ही है और 12 हाइड्रोजन्स है इसके पास, लेकिन इसका अरेंजमेंट देखो कैसा है। 4 कार्बन एक लाइन में और एक की ब्रांच निकली हुई है। कुछ समझ में है बात? ऐसा है ये। देखो, इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं है? डेफिनेटली है यार, एक स्ट्रेट चेन एक ब्रांच चेन है, लेकिन दोनों में 5 कार्बन, दोनों पेंटेन है, दोनों अलग है एक दूसरे से। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन, ओ आई एम सॉरी, सही तो है, हाँ 1 2 3 4 5 करेक्ट है। कुछ समझ में आ रहा है? 3 कार्बन एक लाइन में और मिडल वाले कार्बन पे 2 ब्रांच निकली, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, टोटल 5 कार्बन ही, लेकिन ब्रांच यहां भी चेंज हो गई। फर्स्ट वाले पेंटेन में एक लाइन में कितने कार्बन थे? 5, 4 with how many branches? 3 with how many branches? All have 5 carbons, all have carbon-carbon single bond, all are pentane, but all are different from each other physically. Chemically they are all pentane, but physically they are all different from each other. You will be seeing some names over here. यहाँ तो pentane लिखा है क्योंकि इसका तो यही नाम सही है, but see the name over here. See this name over here. ये जो पहला नाम दिख रहा है ना तुम्हें, आइसोपेंटेन, this is a common name without any meaning. It just suggests that this is an isomer of pentane, does not suggest anything else. Generally the name should be such that नाम पढ़ते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। और ऐसी एक्सरसाइजेस भी है यहाँ पे इस चैप्टर में। They will give you a name and they will tell you to draw the structure. They'll give you the name and they will tell you to draw the structure. तो ये तुम्हें आना चाहिए, अगर ये नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम है। तो आइसोपेंटेन से तो तुम नहीं बना पाओगे स्ट्रक्चर। सो व्हाट यू नीड IUPAC नेम। व्हाट इज द IUPAC नेम? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये कैसे आया उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? आफ्टर दिस एग्जांपल आई एम गोइंग टू टीच यू दैट एज वेल। लुक एट द नेम ओवर हियर। व्हाट इज द कॉमन नेम? नियोपेंटेन। बट व्हाट इज द IUPAC नेम? 2,2 dimethyl propane. Sounds weird, right? किसी को आता है ये? यहाँ पे प्लीज रेज योर हैंड। IUPAC nomenclature, you know it? कैसे? नहीं नहीं, कैसे आता है? How did you learn? You also know? Very nice यार। अरे आई एम रियली ग्लैड यार, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। पढ़ा था तुमने खुद से पढ़ा था तुमने?
वेरी गुड, चलो फिर तो मजा आएगा। IUPAC पे जाते हैं नेमिंग पे। If you are curious, oh sorry, we are left with one more type of isomerism, position isomerism। और मैंने तुम्हें बताया था एक तो चेन होता है जिसमें ब्रांच होती है या स्ट्रेट चेन होती है। पोजीशन में किसकी पोजीशन चेंज होती है पता है? बॉन्ड की। एंड दिस पोजीशन आइसोमेरिज्म इज शोन इन alkenes or alkynes because they contain one, exactly one double or triple bond। मतलब अल्कीन और अल्काइन दोनों पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। In which context they can show position isomerism? The position of the double or triple bond can shift between carbon atoms, बट इसका एक रिक्वायरमेंट है, इसका और वो पहले वाला जो था चेन उसका भी एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम एक कार्बन कंपाउंड में 3 कार्बन होने चाहिए, सॉरी 4 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए? 4 मिनिमम। मतलब आइसोमेरिज्म शुरू कहां से होता है? ब्यूट से। ब्यूट के पहले कोई आइसोमेरिज्म है ही नहीं। ब्यूट के पहले कौन आता है? प्रॉप। प्रॉप का कोई आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है। आइसोमेरिज्म शुरू ही ब्यूट से होता है, क्योंकि ये जो वैरायटी है ना, ये स्ट्रक्चर अलग दिखने की या पोजीशन अलग होने की, ये ब्यूट से ही शुरू हो सकती है। उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं है। मैं दिखाऊंगा, ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाउ दिस इज करेक्ट। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है पोजीशन आइसोमेरिज्म का, और ये ब्यूटाइन का ही एग्जाम्पल है। ये दोनों को जरा ध्यान से देखना है। एक्चुअली इसको तुम रहने ही दो, मैं तुम्हें अलग से दिखाता हूं। सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। Do you see where is the triple bond? After the first carbon atom. See now. Do you see any change? Is there a triple bond? Yes. Is this still butane? Yes. But has there been any change in the position of triple bond? Yes. See this. एक गेम देता हूं तुमको मैं। आउट ऑफ दीज 3 पिक 2 सिमिलर वंस। तीनों में से सिमिलर वन कौन सा है? वेरी गुड। मीन्स ऑप्शन ए and option C are the similar ones. Option B is the one which is different. Why do you think that these two are similar? Same number of carbon atom तो यहाँ भी है। On both sides of the triple. Oh, so you mean to say that the triple bond lies in a very similar place or position in both the options A and C. And what I think is that you are correct. क्यों ऐसा है? थोड़ा सोचो इस बात को। मैं नंबर दे देता हूं, ठीक है? 1 2 3 4। क्या पता चलता है? फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, बट ये जो नंबर मैंने दिए है ना, उसका कोई रूल नहीं है। मैं नंबरिंग कैसे भी कर सकता हूं। मैं नंबरिंग ऐसे भी कर सकता हूं 1 2 3 4। सो डोंट यू थिंक दैट दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम, बिकॉज नंबरिंग कैन बी डन इन एनी वे। हाँ, इसमें अगर ब्रांचेस होती, फंक्शनल ग्रुप्स होते, तो फिर नंबरिंग में बहुत फर्क आता, ठीक है? बट अगर एज इट इज तुम ब्यूटाइन को स्टडी कर रहे हो तो ये दोनों सेम है। इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्यूटाइन ये दोनों सेम है, ए एंड सी। ऑप्शन बी इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज 1 2 3 4 और 1 2 3 4 in any ways, after how many atoms of carbon the triple bond lies?
अगर तुम लेफ्ट टू राइट काउंट करो तो भी सेकेंड एटम के बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है, राइट टू लेफ्ट जाओ तो भी सेकेंड एटम के बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है. डू यू सी दैट? सेकेंड के बाद ट्रिपल बॉन्ड, सेकेंड के बाद ट्रिपल बॉन्ड. सो दिस इज अ यूनिक वन. सो बेसिकली इफ यू आस्क मी के इसके कितने आइसोमर्स होते हैं, किसके? ब्यूटाइन के 2 आइसोमर होते हैं. और ये दोनों का नाम कैसे देना है, तो नेमिंग यहीं से शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज इजी टू नेम. दिस इज इजी टू नेम. इसको मैं लिखूंगा ब्यूट. ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है. आइन, क्यों आइन? बिकॉज ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड. But because the position of triple bond also matters, but 1 ine. Why 1? Because after first carbon there is triple bond. So the name of this particular isomer is but 1 ine. इसका नाम क्या हो जाएगा उसी लॉजिक से? but 2 ine. दोनों ब्यूटाइन है लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म है दोनों में, इसलिए दोनों का IUPAC नेम अलग है. दिस इज द IUPAC नेमिंग सिस्टम विच इज इजी, easier than chain isomerism. ठीक है? ओके? नो, नो. This is the system which your textbook teaches you, and I want you to follow this only. Then there are 2 more, functional and metamerism, which are not in your syllabus, so we are not going to study that. So let us now get some examples of chain isomerism and try to name them. ठीक है? Okay. What is the minimum requirement for isomerisms? Yeah, there must be at least 4 carbon atoms in a molecule of a hydrocarbon in order for it to exhibit isomerism. मिनिमम 4 कार्बन होने ही चाहिए, 3 के साथ वो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन. राइट? ब्यूटेन कैसे बन सकता है? फर्स्ट वे ऑफ ब्यूटेन बीइंग फॉर्म्ड इज दिस, चारों एक लाइन में. सेकेंड वे इज दिस. There is no third way. So butane has got how many isomers? Only 2. The first one is butane. This is butane. This one is not known as butane. तो इसको name कैसे करते हैं? I'm teaching you IUPAC nomenclature method for naming isomers. एंड द मेथड इज वेरी सिंपल, सो प्लीज पे अटेंशन. एक तो मैंने बताया यहाँ पे मेथड जो ये वाला पोजीशन आइसोमेरिज्म का, उसे पोजीशन पे बेस्ड है. अब मैं तुम्हें चेन आइसोमेरिज्म की मेथड बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. तो यहाँ पे कैन यू टेल मी, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन वन स्ट्रेट लाइन? विच 3? I will name. Wait. 1, 2, 3, 4. Which 3 are in one straight line?
options are 1 2 3 1 2 4 3 2 4 all of the above. Which option is correct? Which 3 hydrocarbons are in one straight line? Can I? शॉल चाहिए? वो वियर्ड बिहेव कर रहा है. हाँ अभी सही है. वो मूवी हॉल में जाते हैं ब्लैंकेट देते हैं, पता है? वैसे मैं भी दूंगा और वैसे रिक्लाइनर्स भी दूंगा. आइसोमर्स आई लाइक इट. हाँ 1 2 3 कौन बोल रहा है? सब सही है यार. 2 3 4 सॉरी 3 2 4 1 2 4 वो भी सही है. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? विच 3 कार्बन एटम्स आर इन अ स्ट्रेट चेन. देखो अब ये ना, दिस इज द क्वेश्चन अबाउट पर्सपेक्टिव. तुम्हारा नॉर्मल पर्सपेक्टिव बोलता है ये स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट, तो मैं इसको स्ट्रेट चेन मानता हूं. लेकिन केमिस्ट्री में पर्सपेक्टिव थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है. ये भी स्ट्रेट बोला जा सकता है, इसको भी स्ट्रेट बोल सकता है, और इसको भी हम स्ट्रेट बोल सकते हैं. किसी भी केस में 3 कार्बन को एक लाइन में मानना है हमें. मतलब 1 2 3 एक लाइन में है, 1 2 4 भी एक लाइन में, और 3 2 4 भी एक लाइन में. ठीक है. हर केस में पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है मैं तुम्हें बताता हूं. देखो अगर तुम मानते हो कि 1 2 3 स्ट्रेट लाइन में, तो मुझे बताओ ब्रांच कौन सी है? ब्रांच किस पे निकल रही है? सेकंड वाले पे. ब्रांच इज इमर्जिंग ऑन द सेकंड कार्बन. अगर तुम मानते हो कि 1 2 4 स्ट्रेट लाइन में, तो ब्रांच किस पे निकल रही है? अगेन 2 पे. और 3 2 4 अगर स्ट्रेट लाइन में, तो ब्रांच किस पे निकल रही है? अगेन 2 पे. तो तुम्हारे ऊपर है वो, तुम किसी को भी स्ट्रेट मान सकते हो. लेकिन किसी भी केस में स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम्स है अगर वो पूछूं, तो तुम क्या बोलोगे? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन वन स्ट्रेट चेन? ग्रेट. सो देयर आर 3 number of carbon atoms in a straight chain is equal to 3. कितने कार्बन एटम्स है स्ट्रेट चेन में? 3. जब 3 कार्बन एटम्स होते हैं तो मैं रूट वर्ड क्या यूज करता हूं? प्रॉप. 3 कार्बन एटम्स अगर होते हैं तो रूट वर्ड क्या होता है? प्रॉप. ठीक है. अच्छा अब मुझे बताओ कि कौन से कार्बन एटम पे ब्रांच निकल रही है? तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा. ये नंबर क्या सिग्निफाई करेगा? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन विच ब्रांच इज इमर्जिंग. सो नंबर आ जाएगा 2. अच्छा मुझे ये भी बताओ कि ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है वो कौन से है? तो मतलब ये कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा? तो मतलब यहाँ पे प्रोपेन आना चाहिए. ठीक है, वेरी गुड. अब ब्रांच की बात करते हैं. तो मुझे बताओ ये ब्रांच में जो कार्बन है ये कौन सा हाइड्रोकार्बन या कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? इफ यू जस्ट लुक एट द ब्रांच.
दिस इज C with 3 bonds. C with 3, एक पेयर नहीं है उसके पास, तो ये क्या है? मिथाइल. मिथाइल. तो ब्रांच में कौन है? ब्रांच कौन से कार्बन पे है? और जो तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में जो कंपाउंड है वो कौन सा है? तो इसका नाम इससे ही बनेगा. ठीक है. सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे. प्रीफिक्स क्या होगा पता है? 2 मिथाइल. उसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे प्रॉप. और रूट वर्ड में जो मेन तुम्हारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है उसमें कौन से बॉन्ड्स है? सिंगल. तो उसका सफिक्स लिखेंगे एन. 2 methyl propane is its IUPAC name. So you have to find all these things when you look at a structure. एक तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल, दैट इज ब्यूटेन, और दूसरा हो गया ये 2 methyl propane. दिस इज द IUPAC नेमिंग ऑफ आइसोमर्स. ठीक है. अब नेक्स्ट पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो दैट दिस बिकम्स वेरी वेरी क्लियर टू यू. पेंटेन में जो फर्स्ट वाला है दैट इज दिस. करेक्ट. इसका नाम क्या है? दिस इज योर नॉर्मल पेंटेन. सेकेंड वाला जो है इट कैन बी लाइक दिस. सबसे पहले ब्रांच कौन से कार्बन एटम पे निकली है? मैं तुम्हें 1 सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूं. So you can either count 1 2 3 4 like this or 1 2 3 4 like this. Which one you will choose? You will always choose the numbering in such a manner that the branch gets the lowest number. ब्रांच को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो ब्रांच को लोएस्ट नंबर कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? लेफ्ट टू राइट में. लेफ्ट टू राइट में ब्रांच का नंबर क्या आ रहा है? 2. सो द लोएस्ट नंबर टू द ब्रांच विच वी आर गेटिंग इज 2. ठीक है. सो वी विल सिलेक्ट 2. अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 2. अब ये जो ब्रांच है उसमें कौन है? C है. C है तो इसका नाम क्या है? अभी बोला था मैंने 2 मिथाइल. ब्रांच को छोड़ दो, स्ट्रेट चेन में कितने कंपाउंड्स, कितने कार्बन्स हैं? 4, मतलब ब्यूट. और ये जो स्ट्रेट चेन में उसमें सिंगल बॉन्ड है सारे, मतलब समझ गया कैसे नेम करना है? बहुत इजी है. सेकंड वाला देखो, थर्ड आइसोमर. थर्ड, सेकंड नहीं, थर्ड आइसोमर. द फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल वन, नॉर्मल पेंटेन. देन 2 methyl butane, आइसोपेंटेन, एंड नाउ नियोपेंटेन. नियोपेंटेन में 1 2 3 4 5, 1 2 3. ब्रांच किस पे निकली हुई है? 2 पे. कितनी ब्रांच है? तो 2,2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 ब्रांचेस है 2 पे ही, तो 2,2 लिखना पड़ेगा. एक 2 नहीं लिख सकते. एक 2 मतलब एक ही ब्रांच है. 2,2 मतलब 2 पे 2 ब्रांच है. अच्छा, दोनों ब्रांच में क्या है? सो अगर मैं यहां पे देखूं, ये क्या है और ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो 2,2 डाई मिथाइल. डाई मिथाइल क्यों? क्योंकि 2 मिथाइल है, दोनों 2 पे है, तो डाई मिथाइल. अच्छा, अब स्ट्रेट चेन में कौन सा कंपाउंड है? प्रॉप, क्योंकि 3 कार्बन है, और एन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है. 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. है क्या डिफिकल्ट? है नहीं ना. थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है तुम्हें. या या 2 की जगह 3 मतलब नेमिंग, उसका नंबरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन. तो नंबरिंग वहां से गिना जाएगा, बिकॉज ब्रांच शुड गेट द लोएस्ट नंबर. अगर ब्रांच यहां पे होती सपोज, तो हम नंबरिंग ये वाली लेते हैं, फिर भी नाम यही रहता, 2 मिथाइल ब्यूटेन ही रहता नाम, बिकॉज द ब्रांच शुड गेट द लोएस्ट नंबर. बट ये भी, ये सिर्फ मतलब
ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स के लिए ट्रू है। अगर इसमें बॉन्ड आ जाएगा तो ब्रांच और बॉन्ड के बीच में फिर किसको प्रेफरेंस मिलेगा वो देखना है आपने। इट इज नॉट ऑलवेज के ब्रांच को ही प्रेफरेंस मिलता है या बॉन्ड को मिलता है, वो केसेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, और एक चीज है, ब्रांच बॉन्ड्स और उसके साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी है तो और प्रेफरेंसेस उसमें चेंज हो जाते हैं। फिर अल्फाबेटिक पे चला जाता है मामला कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है अगर दो फंक्शनल ग्रुप है। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है नेमिंग में, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग सिंपल वाले कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल वाले, ठीक है। वंस यू नो सिंपल आइसोमेरिज्म्स का नेमिंग तो बहुत इजी। अच्छा, नेक्स्ट इज फॉर नेमिंग ओनली, द लास्ट फॉर टुडे इज हेक्सेन। सी 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 सी, नाम क्या है? ओके, इसमें क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, हो सकता है ना यार। इसका और कोई ऑप्शन नहीं, बस यही दो हो सकते हैं। मतलब ब्रांचेस अगर 5 कार्बन एक लाइन में और एक ब्रांच निकल रही है तो यही दो पोजीशन पे हो सकती है। बिकॉज सी द पोजीशन 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और आगे लेके जाऊंगा तो वही पहले वाला रिक्रिएट हो जाएगा। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। चलो इसका नेमिंग करो, फर्स्ट वाले का, ऊपर वाले का। 2 मिथाइल पेंटेन, नीचे वाले का करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 1 2 3 4 1 2, या फिर 1 2 3 4 1 2, या फिर या दो ही हो सकते हैं यहाँ भी। करेक्ट, इसका 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर मैंने यहां पे 2,2 डाल दिया तो बात एक ही हो जाएगी, इट विल स्टिल बी 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि अगर मैं नेमिंग देखूं 1 2 3 4 या 1 2 3 4, बात तो एक ही है, 2 पे ही निकल रही है ब्रांचेस। लोअर काउंट देंगे ना हम लोग, और यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा। अच्छा, ये कार्बन अगर ऊपर हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्योमेट्रिकल में चला जाता। स्पेस आइसोमेरिज्म। कितने आइसोमर्स काउंट किए हमने? एक ओरिजिनल हेक्सेन, दो उसके यहां पे और दो यहां पे। सो टोटल 5 आइसोमर्स है किसके? हेक्सेन के। उसके पहले कितने कितने थे? पेंटेन के 3 थे, और उसके पहले ब्यूटेन के 2 थे। सो जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। करेक्ट। अब होमवर्क की बारी आई है, तो काफी होमवर्क करना है तुम लोगों को, बहुत सारा होमवर्क है। कैन आई सी योर बुक, बिकॉज योर बुक माइट बी डिफरेंट फ्रॉम माइन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग को पहला ही। इससे पहले कोई इंटेक्स्ट नहीं। So you have to do the first in-text on page number 188. On page number 188, or if you have the old book, if you have the old book, then you have to do this in-text 201 पे जो है तुम्हारी ओल्ड बुक है न्यू बुक है, इससे रिजेंबल करती है, ये इससे रिजेंबल करती है 201 पे है। अच्छा 23 है, गुड, नो प्रॉब्लम।
ये यही करना है तुम्हें, ये वाला जो इन टेक्स्ट है वो करना है। बाकी लोगों का जो ये न्यू बुक है उन लोगों को फर्स्ट इन टेक्स्ट करना है, सेकंड में नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फर्स्ट इन टेक्स्ट। और ये आज का तुम्हारा होमवर्क है, और कल फिर से मेरे साथ क्लास है। इनफैक्ट मेरे साथ अभी रोज क्लास हो, और मैं रोज होमवर्क देने वाला हूँ। फिर हाँ, ये कल से पहले, क्लास के पहले सबमिट करना। आई एम क्रिएटिंग द असाइनमेंट, राइट? So I'll see you tomorrow, guys. Please do come for offline lectures. It is all normal now. Please come for offline. It is for your exam's sake, I'm telling. ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग तो फायदा उठा लो, प्लीज आ जाओ यहाँ पे, घर पे मत बैठो।